بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو رمضان المبارک کی 100 ایسی بہترین باتیں سنانے والے ہیں جسے اگر ہر مسلمان عمل کر لے تو کبھی بھی رمضان کے مہینے کو ایسے جانے نہیں دے گا۔ اسی لیے اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں میں بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیں تاکہ ان کو بھی ایسی جانکاری حاصل ہو سکے۔ تو چلیے دوستوں، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس میں صرف روزے دار ہی داخل ہو کر جنت میں جائیں گے۔ نمبر 2، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ نمبر 3، رمضان میں روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہے، ایک افطار کے وقت اس کو خوشی ملتی ہے اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تب ملے گی۔ نمبر 4، رمضان المبارک رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ نمبر 5، رمضان مبارک میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 6، رمضان المبارک میں عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 7، رمضان المبارک جب شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 8، رمضان المبارک جب آتا ہے تو سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ کر قید کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 9، رمضان میں اللہ تعالیٰ افطار کے وقت روزانہ 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ نمبر 10، رمضان میں ہر رات اور دن میں اللہ کے یہاں جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں اور ہر مسلمان کے لیے شب روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 11، رمضان میں روزے دار کے منہ کی بدبو رب کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ نمبر 12، رمضان المبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 13، روزے دار کا سونا عبادت ہے اور اس کی خاموشی تسبیح ہے اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 14، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جو شخص رمضان میں ثواب سمجھ کر تراویح کی نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نمبر 16، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندق یعنی گڈھے بنا دیتے ہیں جو مشرق اور مغرب کے بیچ فاصلے سے بھی زیادہ لمبے چوڑے ہیں۔ نمبر 17، رمضان میں ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نمبر 18، لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں یعنی رمضان کے آخری 10 دن میں طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ طاق راتیں یہ ہے جیسے 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ ان 5 راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نمبر 19، روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا بدلہ دے گا۔ نمبر 20، رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار اور سب سے افضل مہینہ ہے اور رحمت اور صبر کا مہینہ ہے۔ نمبر 21، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اور تمام آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ نمبر 22، رمضان میں باکثرت جہنمیوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ نمبر 23، رمضان میں 3 عشرے ہیں، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصے کا عشرہ ہے۔ نمبر 24، رمضان مبارک میں بندے کی دعائیں باکثرت قبول کی جاتی ہیں۔ نمبر 25، رمضان اتنا پیارا مہینہ ہے، اگر امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو وہ ضرور تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی رہے۔ نمبر 26، جب رمضان کا مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا، آپ کی نمازیں زیادہ ہو جاتی، آپ دعا میں گڑگڑانے لگتے اور آپ پر خوف طاری ہوتا۔ نمبر 27، رمضان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، جتنی نیکیاں بٹورنا چاہو بٹور لو۔ نمبر 28، رمضان میں خوب قرآن پڑھو، خوب زیادہ عبادت کرو۔ نمبر 29، رمضان میں خوب نماز پڑھو، استغفار کرو، درود پڑھو اور گناہوں سے بچو۔ نمبر 30، جہاد کرو، غنیمت پاؤ گے، روزہ رکھو، صحت پاؤ گے،
सफर करो, मालदार हो जाओगे। नंबर 31, लोग हमेशा नेकी पर रहेंगे जब तक वो जल्द इफ्तार किया करेंगे। नंबर 32, दीन इस्लाम हमेशा गालिब रहेगा जब तक लोग जल्दी रोज़ा खोला करेंगे, क्योंकि यहूद और नसारा रोज़ा खोलने में देर किया करते हैं। नंबर 33, सहरी खाया करो, इसलिए कि सहरी खाने में बरकत है। नंबर 34, सहरी खाने में बरकत है, उसे ना छोड़ो, चाहे पानी का एक घूंट ही पी लो, क्योंकि अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर दुरूद भेजते हैं। नंबर 35, रोज़ा एक ढाल है जिसके जरिए इंसान जहन्नुम से तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर लेता है। नंबर 36, तुम में से कोई शख्स रमज़ान से 1 या 2 दिन पहले रोज़ा ना रखे, मगर वो शख्स जो रोज़ा रखने का आदी हो और वो दिन उस रोज़ आ जाए तो उसके रोज़ा रखने में कोई हर्ज नहीं, वो उस दिन का रोज़ा रख सकता है। नंबर 37, जो शख्स रमज़ानुल मुबारक में शुरू से आखिर तक रोज़े रखे तो वो अपने गुनाहों से इस तरह बाहर आया गोया कि अभी माँ के बदन से पैदा हुआ है। नंबर 38, जो रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखे अल्लाह पाक उसको क़यामत के दिन एक मकान जुमुर्द का अता करेगा। नंबर 39, उस मकान के 1000 दरवाजे होंगे और 1000 दरवाजे के आगे दरख्त होंगे। अगर 100 साल तक सवार होकर उस दरख्त के साए में फिरे तब भी उसके साए से बाहर नहीं आ पाएगा। नंबर 40, रोज़ा और कुरान बारगाहे इलाही में बंदे की सिफारिश करेंगे। नंबर 41, चुनांचे रोज़ा कहेगा, ऐ परवरदिगार, मैंने इसको दीन में खाने पीने और ख्वाहिशों से रोके रखा, बस इसके लिए मेरी सिफारिश कबूल फरमा। नंबर 42, और कुरान कहेगा कि मैंने इसको रात की नींद से बाज रखा, यानी ये मेरी तिलावत के सबब जागता रहा, बस उसके हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमा, और उसकी सिफारिश अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे। नंबर 43, रोज़ेदार का सोना इबादत है और उसकी खामोशी तस्बीह है, और उसका अमल बढ़ा दिया जाता है और उसकी दुआ कबूल हो जाती है और उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। नंबर 44, जो शख्स रमज़ान के रोज़े रखे और उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखे तो ये हमेशा रोज़े रखने की तरह है। नंबर 45, अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के लिए इस पाक महीने को रहमत, मगफिरत और जहन्नुम से निजात का जरिया बना दे। नंबर 46, जो शख्स रोज़ा रखकर झूठ बोलना और उस पर अमल करना ना छोड़े तो अल्लाह ताला को उससे कोई गर्ज नहीं कि वो खाना पीना छोड़े। नंबर 47, जब कोई रोज़ा रखे तो कोई बेहुदा बातें ना करे, ना ही लघु बातें करे। अगर कोई तुमसे झगड़े तो वो कह दे कि मैं रोज़े से हूँ। नंबर 48, रोज़ेदार की मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से बेहतर है। नंबर 49, जिसने रमज़ान के रोज़े को फ़र्ज समझकर सवाब की उम्मीद से रखा वो बख्श दिया जाएगा। नंबर 50, जिसने ईमान और अज्र की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे और उसकी रातों में क़याम किया तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। नंबर 51, रमज़ान की हर रात और दिन में अल्लाह के यहाँ से जहन्नुम के कैदी छोड़े जाते हैं और हर मुसलमान के लिए शब रोज़ में एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। नंबर 52, जन्नत का एक दरवाज़ा सिर्फ रोज़ेदार के लिए महसूस होगा, उससे रोज़ेदारों के सिवा कोई और नहीं गुजरेगा। नंबर 53, जिस शख्स ने किसी रोज़ेदार को इफ्तार करवाया तो उस शख्स को भी इतना ही सवाब मिलेगा जितना कि सवाब रोज़ेदार के लिए होगा और रोज़ेदार के अपने सवाब में से कुछ भी कमी नहीं की जाएगी। नंबर 54, जिसने रमज़ान के रोज़े को फ़र्ज समझकर सवाब की उम्मीद से रखे वो बख्श दिया जाएगा। नंबर 55, रमज़ान की हर रात और दिन में अल्लाह के यहाँ से जहन्नुम के कैदी छोड़े जाते हैं। नंबर 56, रमज़ान में हर मुसलमान के लिए शबे रोज़ में एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। नंबर 57, रमज़ान के महीने में रोज़ाना अल्लाह ताला से रोज़ाना इफ्तार के वक्त 10 लाख ऐसे गुनाहगारों को जहन्नुम से आज़ाद फरमाता है जिन पर गुनाहों की वजह से जहन्नुम वाजिब हो चुकी होती है। नंबर 58, सहरी खाने वालों पर अल्लाह ताला और फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। नंबर 59, रोज़ा एक ढाल है जिसके ज़रिए इंसान जहन्नुम से तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर लेता है। नंबर 60, रमज़ानुल मुबारक कुरान करीम का महीना है। अल्लाह ताला ने इस महीने में कुरान करीम नाजिल किया, बल्कि दूसरे आसमानी किताबें भी इसी मुबारक महीने में नाजिल हुई है।
इसी लिए इस महीने की कुरान पाक के साथ बहुत गहरी मुनासिबत पाई जाती है। नंबर 61, और इसी वजह से इस महीने में साल भर के मुकाबले में सबसे ज़्यादा कुरान करीम पढ़ा जाता है, और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि कुरान करीम का महीना होने के एतबार से उसका हक भी यही बनता है। नंबर 62, जब तुम में से कोई अपने रब से बातें करना चाहे तो उसे चाहिए कि वो कुरान करीम पढ़े। नंबर 63, लोगों में सबसे बड़ा इबादत गुजार वो है जो सबसे ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत करने वाला है। नंबर 64, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की सबसे अफजल इबादत कुरान की तिलावत है। नंबर 65, कितने खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें हर साल इत्तिकाफ की तौफीक नसीब होती है और हर साल वो इस अजीम सआदत को हासिल करने के लिए कोशा रहते हैं। नंबर 66, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक रोज़ेदार के पास जब तक कुछ खाया जाए, जब तक लोग खाकर फारिग ना हो जाएं, तब तक फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करते रहते हैं। नंबर 67, जो शख्स रोज़ा रखने की वजह से खाने पीने से रुका रहा, हालांकि उसे खाने पीने से रुग़बत भी थी, तो अल्लाह ताला जन्नत में उसको फल खिलाएगा। नंबर 68, जो शख्स 5 नमाजों का एहतमाम करता हो, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखता हो, ज़कात निकालता हो और 7 बड़े गुनाहों से परहेज़ करता हो, तो उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और क़यामत के दिन उससे कहा जाएगा कि जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। नंबर 69, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी, बेशक मैं अपना अजाब और सज़ा उस जगह नाजिल नहीं करता जहाँ 3 अफराद ऐसे भी हों जो रमज़ान के रोज़े रखते हों। नंबर 70, सहरी खाना एक सुन्नत अमल है जिसमें अल्लाह ताला की जानिब से बरकतें रखी गई है। नंबर 71, यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहरी खाने को पसंद फरमाते थे और उम्मत को भी इसकी बड़ी ताकीद फरमाई है। नंबर 72, सहरी खाया करो इसलिए कि सहरी खाने में बरकत है, चाहे आप पानी का एक घूंट ही पी लो, लेकिन ज़रूर पी लिया करो। नंबर 73, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम मुसलमान के रोज़ों और अहले किताब के रोज़ों के दरमियान सहरी खाने का फ़र्क है, यानी हम सहरी करते हैं, वो नहीं करते। नंबर 74, सहरी की तरह इफ्तारी भी एक सुन्नत है और इबादत का अमल है जिसमें बरकतें और रहमतें रखी गई है। नंबर 75, अल्लाह ताला इफ्तारी के वक्त में बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। नंबर 76, अल्लाह ताला इफ्तारी के वक्त दुआएं कबूल करता है और जहन्नुम से लोगों को आज़ाद किया जाता है, इसलिए इस अहम वक्त की कदर करनी चाहिए। नंबर 77, इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि वो इफ्तार के वक्त अपने अहलो अयाल को लेकर दुआ किया करते थे। नंबर 78, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ेदार के लिए उसके रोज़ा खोलने के वक्त एक मकबूल दुआ होती है जो रद्द नहीं की जाती। नंबर 79, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है कि हर मोमिन के लिए उसके रोज़ा इफ्तार करने के वक्त में एक मकबूल दुआ होती है, या तो उसकी कबूलियत दुनिया में ही जल्दी हासिल हो जाती है या वो दुआ उसके लिए आखिरत में जखीरा कर ली जाती है। नंबर 80, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ेदार के लिए 2 खुशियां हैं, एक वो खुशी जो उसको इफ्तार के वक्त मिलती है और दूसरी वो खुशी जो उसे अपने रब से मुलाकात के वक्त हासिल होगी। नंबर 81, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराया या किसी मुजाहिद को अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए सामान दिया, तो उसके लिए उस रोज़ेदार और मुजाहिद की तरह रोज़ा रखने और जिहाद करने के बराबर अज्र है, यानी सवाब है। नंबर 82, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी रोज़ेदार को अच्छी तरह इफ्तार कराकर सैर करा दिया, अल्लाह ताला उसे मेरे हौज से ऐसा जाम पिलाएगा कि वो कभी प्यासा नहीं होगा, यहाँ तक कि जन्नत में दाखिल हो जाएगा। नंबर 83, इफ्तारी कराने के लिए ज़रूरी नहीं कि मुकम्मल इफ्तारी का पुरतकल्लुफ़ इंतज़ाम किया जाए, बल्कि हदीस के मुताबिक एक खजूर, एक पानी या लस्सी या शरबत का घूंट या एक रोटी का टुकड़ा या लुकमा खिलाने वाले को भी इफ्तारी कराने के तमाम फ़ज़ाइल हासिल होंगे। नंबर 84,
3 दुआएं अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर बहुत ज्यादा कबूल होती है। रोजेदार की दुआ, मुसाफिर की दुआ और मजलूम की बद दुआ। नंबर 85, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजेदार की दुआ को रद्द नहीं किया जाता। नंबर 86, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला रमज़ान की पहली रात में जन्नत और जहन्नुम के दरोगों से इरशाद फरमाता है, ऐ रिजवान, जन्नत के दरवाजे खोल दो, और ऐ मालिक, जहन्नुम के दरवाजे उम्मत मुहम्मदिया के रोजेदारों पर बंद कर दो। नंबर 87, जब रमज़ान का मुबारक महीना आता है तो अल्लाह पाक की जानिब से अपने बंदों के लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नंबर 88, रमज़ान की पहली शब में यानी पहली रात में जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और उसका कोई दरवाज़ा खुला नहीं रहता। नंबर 89, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाजें जुम्मे से जुम्मे तक और एक रमज़ान से लेकर दूसरे रमज़ान तक उन तमाम गुनाहों का कफ़ारा है जो उनके दरमियान होते हैं, लेकिन गुनाह कबीरा से बचा जाए। नंबर 90, रमज़ान का महीना चल रहा है जो बड़ी बरकत वाला है। अल्लाह पाक इसमें तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होता है, अपनी रहमत खास नाजिल फरमाता है, खताओं को माफ़ फरमाता है और दुआओं को कबूल करता है। नंबर 91, रमज़ानुल मुबारक वो अजीम महीना है जिसमें मोमिनों के रिज्क को बढ़ा दिया जाता है। नंबर 92, रमज़ान मुबारक की आखिरी रात में सब की मग़फ़िरत कर दी जाती है। किसी ने दरियाफ्त किया यानी पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये शब कद्र है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि दस्तूर है। जब मजदूर काम ख़त्म कर ले तो उसकी उजरत चुका दी जाती है। नंबर 93, रमज़ान के महीने का पहला असरा रहमत का, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का और तीसरा अशरा जन्म से निजात का असरा है। नंबर 94, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ताला का महीना है। नंबर 95, शब कदर वो अजीम और बाबरकत रात है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को नाजिल किया है। चुनांचे इरशाद बारी ताला है कि बेशक हमने इस कुरान पाक को शब कद्र में नाजिल किया है। नंबर 96, अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ ये एक रात को वो कद्र मंजिलत अता फरमाई है कि 1000 महीनों पर इस रात को फौकियत हासिल है। चुनांचे इरशाद बारी ताला है कि शब कद्र 1000 महीनों से भी बेहतर है। नंबर 97, हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि शब कद्र में अमल करना, सदका करना, नमाज पढ़ना, ज़कात अदा करना 1000 महीनों से अफजल है। नंबर 98, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शब कद्र होती है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम मलाइका की एक जमात के साथ उतरते हैं और उस शख्स के लिए जो खड़े बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं उनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। नंबर 99, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान की हालत में अजर सवाब की उम्मीद रखते हुए शब कद्र में इबादत के लिए खड़ा हो तो उसके पिछले तमाम सगीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। नंबर 100, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक शब कद्र में ज़मीन पर आसमान से उतरने वाले फरिश्तों की तादाद कंकड़ों की तादाद से भी ज़्यादा होती है। तो प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।